Ji for being part of our journey to this success. And let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan 3 is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at Your House Satellite Center, Shankar and the director. It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to land to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO, Director URSC and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan 3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Srikanth. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan 3 and acting as Mission Director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly, and I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Director URSC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things carrying out in a proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3. We have achieved our goal flawlessly from the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience. It has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team, and starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously, and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team, and of course with the guidance from our Chairman ISRO, our directors and all our experts. With all this, it has been possible. Thank you one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Now, Chandrayaan 3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayaan 3 was launched,
after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced and overcome that, it is, as a person who has been watching this for the last 4 years along with them, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. Nothing less than nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future. So as the Honorable Prime Minister mentioned, we will be now looking at putting the man in space, putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for few years, and this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly, so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us, intentionally or unintentionally helped us in all for every one of you. A big thank you, because even casual remark, an unintended point can help a person who is striving to reach a goal. The person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite that's why I said that even unintended help is very, very, very welcome, and we are very, very thankful for that. Thank you, Team ISRO, for supporting all of us. The amount of affection we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and this is going to be successful. In fact, I was not that much confident, because we have seen a couple of times issues, because I know very well as a person who has been doing in this domain for 36 years, I know there are thousands of things. Any of that can anytime go wrong and derail. But so many of the people, because that I only see as the reflection of the effort we have put, that people are so happy to see this effort and they want us to succeed. It is not that they know that we are going to succeed. The people want us to succeed. So thank you very much for everyone for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly, ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family, for the wonderful work you did in ISRO. So thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of
comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people in all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. Thank you. ने इतिहास रच दिया है। भारत चांद पर पहुंच गया है। जी हां, अब चांद दूर नहीं और भारत ने चांद पर कदम रख दिया है। ऐतिहासिक क्षण भारत के लिए और पूरी दुनिया भारत की इस कामयाबी को गंभीरता से देख रही है, समझ रही है और चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई है और साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। ये कामयाबी दुनिया में सबसे पहले भारत के हिस्से में आई है और ये आप इसरो की टीम को देख रहे हैं। बड़ा जश्न का माहौल इस वक्त इसरो दफ्तर में है, इसरो हेडक्वार्टर में है और ये जबरदस्त कामयाबी। अभी आप पीएम मोदी को सुन रहे थे और पीएम मोदी ने कहा कि ये नए भारत का जय घोष है। तो जी हां, एक बड़ी कामयाबी अंतरिक्ष में भारत ने हासिल की है और इतिहास बना है, इतिहास रचा है भारत ने आज। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस ऐतिहासिक क्षण में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इस वक्त आपको डिटेल में इस कामयाबी को समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ विक्रांत नारंग हैं, सीटीओ स्पेस इंडिया के। हमारे साथ डॉक्टर सुधीर कुमार चतुर्वेदी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर एरोस्पेस इंजीनियरिंग के। हमारे साथ मंथन गांधी हैं, एस्ट्रोनॉमर स्पेस इंडिया के। और जॉन लिविंगस्टोन हैं, फाउंडर एंड सीईओ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, लेकिन हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए कि महामहिम राष्ट्रपति क्या बोल रही है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी को आपने सुना, उन्होंने। चलिए हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल विक्रांत नारंग जी आपसे होगा। एक बड़ी कामयाबी, ऐतिहासिक कामयाबी, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इस कामयाबी के मायने क्या हैं सर हम देशवासियों के लिए? विक्रांत नारंग जी। इसरो के वैज्ञानिकों ने फिर प्रूव कर दिया है कि भारत नंबर 1 है। जो विक्रम साराभाई ने जो मैसेज दिया था, डॉक्टर विक्रम साराभाई फाउंडर ऑफ स्पेस प्रोग्राम के इंडिया इज सेकंड टू नन, तो वो आज फिर से प्रूव हो गया है। और ये स्पेस एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है और अब खाली 4 देश, चाइना, यूएसए, यूएसएसआर और इंडिया, ये 4 ही देश हैं जिन्होंने ये कामयाबी अचीव की है। सो एक स्पेस क्लब यानी कि फ्यूचर इज स्पेस। तो चंद्रमा पे जितने भी खनिज मिलते हैं और चंद्रमा पे जो आगे सेटलमेंट है, इस इंडिया इज पार्ट ऑफ ऑल्सो आर्टेमिस। तो इंडिया एक ऐसा देश बन गया है इसके बाद के जो आर्टेमिस के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाएगा और आगे लूनर सेटलमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाएगा। और पूरे विश्व ने हमारी कैपेबिलिटी आज देख पर रिटर्न मिशन। तो ये एक मैं यहाँ पे एक दिल्ली पब्लिक स्कूल में हूँ जहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि इतना
एक ऐसा माहौल पूरे भारत में आज क्रिएटेड है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इतने उत्साहपूर्वक ये पूरी कामयाबी को देखा है। तो जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं, और इसरो ने एक बड़ा खास आज मैसेज भेजा था कि स्कूल के बच्चों को खूब इन्वॉल्व करें स्पेस एक्सप्लोरेशन में। तो आज यहाँ पे स्कूल के बच्चे बहुत जोर शोर से, जिन्होंने गाना गाया दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद में, चंदा मामा दूर के नहीं रहे अब दूर के, तो एक पूरे देश में एक लहर फैल गई है। पूरे देश में एक यूनिटी का एटमॉस्फेयर है और सेलिब्रेशन का एटमॉस्फेयर है। और इंडिया इज़ नाउ एमर्जिंग, जो हम जहाँ पे अंग्रेज़ों ने हमारे को इतना कैप्चर करके रखा था, लेकिन भारत में दिमाग बहुत है। तो इसरो अब इंडिया अब टोटली एक फ्री कंट्री है और वापस एक सोने की चिड़िया की तरह से बन के आया इसरो के साइंटिस्ट के दिमाग की वजह से। कह रहे हैं कि हमने प्रूव कर दिया है। लेकिन अब मंथन जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि जो काम यूएस नहीं कर पाया, जो काम रूस नहीं कर पाया, जो काम चीन नहीं कर पाया, वो हमने कर दिखाया है। तो क्या आपको लगता है कि अब दुनिया हमारे साइंस का और लोहा मानेगी? और ऐसा हमने क्या खास है कि जो काम यूएस रूस चीन नहीं कर पाया वो हमने कर लिया? हमारी टेक्नोलॉजी कैसे अलग है सर इन देशों से? धन्यवाद सर। सर जैसे कि हम लोग वैदिक एस्ट्रोनॉमी से ही हम लोग बहुत आगे थे। इस साइंस की फील्ड में हम लोग हमारे जो वेद्स थे उसमें भी हम लोग बहुत आगे थे साइंस को लेकर। तो उसी तरह की अभी भी हम लोग इसरो उस मुकाम पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है जिस मुकाम पे अभी बाकी देश ऑलरेडी पहुंच रहे हैं। पर इस लैंडिंग के बाद हमारे जो साइंटिस्ट हैं, इसरो के साइंटिस्ट हैं, उनको इतना कॉन्फिडेंस गेन हो चुका है कि हम लोग अब इंडिया पीछे नहीं झुक के देखेगा। तो वो एक जोश, वो एक जुनून सारे साइंटिस्ट्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। और ऐसे ही हम लोग आगे अभी जो आदित्य मिशन जाने वाला है उसकी भी तैयारी वो भी हम लोग सक्सेसफुली उसको भी लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी। और इसी तरह ही हम लोग जैसे बाकी देशों के सैटेलाइट्स भी अब हम लोग ही लॉन्च करेंगे। तो एक इसरो के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धिता है कि हम लोग उस मिशन पे पहुंच पाए जहां कोई भी नहीं जा पाया सदर्न रीजन पे। आज हमारे यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब है। हम चाह रहे थे कि हम अपने दर्शकों को ये भी दिखाएं कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे वो चंद्रमा पे लैंड किया है हमारा रोवर, उसकी फ़ोटो हम लोग ले सके। पर अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब है तो हम लोग वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धता है हमारे इसरो के लिए, जो इसरो के साइंटिस्ट के लिए। और हम लोग अब वो देश नहीं रहा मेक इन इंडिया जो देश था, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा था मेड इन इंडिया, वो ऑलरेडी अब सफल होता हुआ दिख रहा है। हम लोग सब कुछ टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हम लोग अब नासा को भी हम लोग टक्कर देने के उस मुकाम पर पहुँचने वाले हैं। सर बड़ी बात आपने कही सर कि हम नासा को भी अब टक्कर दे सकते हैं। और पीएम ने बहुत ही अच्छी बात कही कि अब जो बच्चे कहते हैं कि चंदा मामा दूर के, तो अब बच्चे कहेंगे चंदा मामा टूर के, क्योंकि भारत चांद पर पहुंच चुका है। मतलब चांद अब भारत की पहुंच से बाहर नहीं है, भारत ने कदम वहां पर रख दिया है। लेकिन अब सुधीर जी, मेरा आपसे एक सवाल ये होगा कि अब तो लैंडिंग हो गई, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसके बाद का रोल क्या होगा, लैंडर रोवर का क्या रोल होगा, किस तरह से कामकाज होगा अब इसके बाद? सुधीर जी। धन्यवाद मृत्युंजय जी। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भारतवर्ष के लोगों को बधाई देता हूं कि हमने बहुत सक्सेसफुली लैंड कर लिया है। और जैसा कि आपने पूछा कि रोवर का क्या काम होगा, सो रोवर में कई सारे सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि वो सतह के बारे में बताएगा, वहाँ क्या केमिकल्स हैं, क्या वाटर मॉलिक्यूल्स में कितना मॉइस्चर कंटेंट है, कितना टेम्परेचर हो सकता है, क्या प्रेशर वैल्यूज होंगे। तो ये सारा कुछ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरीके से एंड कैमरे के माध्यम से, सेंसर्स के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन लेके हमारे इसरो सेंटर्स को भेजेगा। और वहाँ पे जो हमारे साइंटिस्ट है, जैसे कि चंद्रयान 2 या 1 के थ्रू हमने जो पता लगाया था कि वहाँ वाटर पार्टिकल मौजूद हैं, अब हम रियल टाइम में पता कर सकते हैं कि डेफिनेटली, मतलब ये वैलिडेशन हो रहा है हमारा वहां पे जाकर, या रोवर का वहां पर जाकर इमेज को कैप्चर करना और उससे फिर इंफॉर्मेशन निकालना, जो कि वैलिडेशन होगा एक्चुअली कि हम रिमोट सेंसिंग डेटा को और एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है जो कि रोवर कैप्चर करेगा उसको हम कैसे वैलिडेट कर पाएंगे, कितने तरीके के मिनरल्स है वहां पे, खनिज पदार्थ कितने हैं, क्या हम रहने की संभावना हो सकती है या नहीं हो सकती है फ्यूचर में। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए और मैं सभी को बधाइयाँ देता हूँ। एंड we are feeling very proud to for this successful mission of Chandrayaan 3। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे साथ इस बीच दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल
अनिल कुमार भी जुड़ रहे हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और ये कहा गया, अभी हमने बातचीत की तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये कहा गया था कि इस मिशन में बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दिखाया जाए कि कैसे इस तरह के मिशन को अंजाम दिया जाता है, ताकि बच्चों में एक एनर्जी आए, एक पॉजिटिविटी आए और इस दिशा में काम और तेज़ी से आगे बढ़े। आप चूंकि दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, क्या बच्चों का सेंटिमेंट आपने देखा इस कामयाबी के बाद? मृत्युंजय जी, मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो बहुत ही पैल्पेबल साफ नज़र आ रही है। और बच्चे, मैं आपको बता नहीं सकता कि पिछले 72 घंटों से इसके पीछे लगे हुए हैं कि कब लैंडिंग का वो सीन आए। और आज पूरा ऑडी भर के बच्चों का, उन्होंने एक गाना बनाया जो बच्चों ने शब्दों में यूज़ किया कि चंदा मामा दूर के नहीं रहे अब दूर के। इससे ज़्यादा बेहतरीन आप समझ सकते हैं कि सेंटिमेंट देश के प्रति बच्चों का कोई दे ही नहीं सकता। दूसरी बात मैं कहूँगा कि स्पेस एक ऐसा प्रोग्राम है जो अनंत है, जिसमें जितनी खोज की जाए उतना कम है। तो आज जब चंदा मामा को हमने अपने काबू में ले लिया है एक तरीके से भारतवर्ष ने, और पूरे विश्व को दिखा दिया है कि भारतवर्ष उस जगह पहुंच चुका है जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। कहाँ नारद मुनि हुआ करते थे जो पूरे विश्व में जाने जाते थे और कहा जाता था कि वो अंतरिक्ष में एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जा सकते हैं। तो वो दिन अब दूर नहीं है जब बच्चे चंदा मामा पर, मंगल पर और शुक्र पर और बृहस्पति पर भी अपने कदम इसरो रख पाएगा। तो ये कहने के बाद मैं ये भी कहूँगा कि हमने स्कूल में अभी बच्चों के लिए एक यूनिवर्स फॉर ऑल नाम का एक प्रोग्राम चालू किया है, जिसमें क्लास 1 से लेकर के जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है देश का, जो अभी 2020 में लॉन्च हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए यूनिवर्स फॉर ऑल एक प्रोग्राम हमने इंट्रोड्यूस किया है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चों को स्कूल में ही टेलीस्कोप के थ्रू, बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप के थ्रू बच्चों को ये डायरेक्ट हैंड्स ऑन पूरे, सबसे पहले धरती के बारे में, फिर सोलर सिस्टम के बारे में, फिर अपनी गैलेक्सी के बारे में, और गैलेक्सी के बाहर फिर पूरे यूनिवर्स को देखने की इच्छा जो बच्चों की है और समझने की जो संसार को है, वो हम बहुत जल्दी दिखा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल दिखा पाएंगे। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे जॉन ये होगा कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है और बाकी के देश भी बहुत टकटकी नज़र से देख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि नॉर्थ पोल के मुकाबले चांद के साउथ पोल में ऐसा क्या खास है कि दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है? ये अलग बात है कि भारत ने पहले कामयाबी हासिल की है, लेकिन पूरी दुनिया की नजर है वहां पर। ऐसा क्या खास है सर वहां? जैसे मैंने पहले भी बोला था कि वहां पे मिनरल एक्सप्लोरेशन का अपॉर्चुनिटी ज्यादा है कंपेयर टू एनी पार्ट ऑफ मून, इंक्लूडिंग नॉर्थ पोल। तो इसीलिए साउथ पोल पे सबका वो एक अटेंशन और आंखें है, तो इसलिए वहां पे सारे एक्सप्लोरेशन के ऑप्शंस देखा जा रहा है। अब क्योंकि हम पहला देश बन गए जहां पे जाके अभी एक्सप्लोरेशन शुरू कर सकते हैं, हम एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं पूरा दुनिया के लिए कि अभी वहां पे जाने का ये पॉसिबिलिटी है। इसकी वजह से हमें जो बूस्ट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स, स्पेस स्टार्टअप्स, इंडिया के जितने भी अभी तक वो जो हेसिटेशन होता था कि स्पेस इंडस्ट्री में अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स भी अगर करते थे इसका सक्सेस नहीं होगा, अभी जो होगा, जितने भी स्टार्टअप्स हैं उन पे जो इन्वेस्टमेंट्स होने वाले हैं, इन्वेस्टर्स आगे आएंगे और ये जो $100 बिलियन का अगले 15 साल का जो मार्क दिख रहा है इंडियन स्पेस इंडस्ट्री का, इसका एक्सप्लॉयटेशन भी होगा। क्योंकि अभी एक्सप्लोरेशन के लिए और भी स्टार्टअप्स चाहिए, और भी इंडस्ट्रीज चाहिए, और भी मशीन चाहिए, और भी मिशंस भेजना पड़ेगा हमें। सो ये एक बहुत ही एडवांटेजेस चीज हो चुका है। सो साउथ एक्सप्लोरेशन इज द बेस्ट कंपेयर टू एनी अदर पार्ट ऑफ द मून। ठीक बात है। अब लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन विक्रांत नारंग जी, जैसा कि हमने सुना कि चंद्रयान 2 का भी क्राफ्ट वर्किंग है, ये बात सुनने में आई है, ये बात कही गई है, तो अब उसका रोल क्या होगा इसमें? विक्रांत नारंग जी, अच्छा लगता है विक्रांत जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। जॉन, यही सवाल आपसे मेरा। आप सवाल एक बार रिपीट कीजिए। सवाल यह है कि ये कहा गया कि चंद्रयान 2 का क्राफ्ट भी अभी वर्किंग है, तो अब उसका रोल क्या होगा? अब उसका रोल होगा ज्यादा कंटिन्यूटी में अभी हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने में बहुत सहायता होगा, विच मीन्स अभी बैकअप के तौर पे चंद्रयान 2 भी हमें कम्युनिकेशन करने में इजी हो जाएगा। चंद्रयान 3 में बहुत ही ऑलरेडी सेंसर से कम्युनिकेशन इक्विपमेंट सब कुछ ऑलरेडी है, लेकिन ये जो ऑलरेडी जो चंद्रयान 2 का जो पहले चल रहा था उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका है
उसको बूस्ट करके अभी चंद्रयान 3 जाके उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। इसकी वजह से क्या होगा, बाकी फ्यूचरिस्टिक जितने भी मिशन अभी होंगे उनमें चंद्रयान 2 और 3 दोनों के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बहुत ही हमें हेल्प करेंगे। उसका ऑब्जेक्टिव यही था। लेकिन अब जरा मंथन गांधी जी, आप हमें ये बताइए सर कि मतलब कॉस्टिंग आप देखिए कि चंद्रयान 2 की जो कॉस्टिंग थी वो 978 करोड़ रुपए थी और चंद्रयान 3 की कॉस्टिंग बहुत कम हो गई, उसके मुकाबले 615 करोड़। तो इतनी कम लागत में इस तरह की कामयाबी बहुत ही मतलब सैल्यूट है हमारे साइंटिस्ट को। तो आपको लगता है कि अब दुनिया के सामने एक बड़ा चैलेंज होगा कि कम कॉस्टिंग में आप चांद पे पहुंचे, ये मुमकिन हो पाएगा? बाकी देशों की तरफ से प्रयास तो कर रहे हैं, चीन, अमेरिका, रूस। बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, सारे देश प्रयास कर रहे हैं, जो अभी तक जा चुके हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जो पिछले चंद्रयान 2 से इस बार जो हम लोग कॉस्ट को कट कर पाए, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये था कि हम लोगों ने पिछली बार 5 इंजन यूज़ करे थे, चार कोनों में और एक बीच में इंजन था। इस बार हम लोगों ने जो बीच वाला इंजन है उसको एलिमिनेट कर दिया था ताकि हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग बहुत आसानी से कर पाए। तो इसी मुकाबले अगर हम लोग और टेक्नोलॉजी को एनहांस करेंगे तो हम लोग 600 करोड़ क्या, हम लोग 400 करोड़ में भी चांद में पहुंच पाएंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे भारत के लिए कि हम लोग सस्ते से सस्ता मिशन लाके हम लोग। मैं आता हूं सर आपके पास, इसरो चीफ बोल रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। The velocity was far less than 2 meters per second. It actually gives us a lot of confidence that the health of the craft will be very good, and we will be able to continue with the experiments, including the Pragyan rover coming out and then doing all the experiments. So we are looking for very exciting 14 days from now for Chandrayaan 3. And as Honorable Prime Minister has mentioned, it is not Chandrayaan 3 alone. It is for future scientific exploratory missions. This is the beginning of a golden era. That is a message I get from what our Prime Minister told. So we are looking for launch of Aditya L1 now next month, and also the launches of many other science missions, including the mission for the human spaceflight as well. So thanking each one of you for your support, and I cannot tell you the type of that excitement that is created in the whole of India. Every school child, every school, every village, every mohalla is excited by the showcasing of this landing videos and broadcast, and all of them are praying, having lot of pujas and homas and other methods of prayers suitable for each one of them for the success of this mission. And I want to thank each one of you. तो बहुत ही एक्साइटमेंट है और निश्चित तौर पर आज का दिन इसरो का दिन है। इतनी बड़ी कामयाबी इसरो के हिस्से में आई है, इसके लिए पूरे देश की तरफ से बधाई मिल रही है इसरो के वैज्ञानिकों को, इसरो की पूरी टीम को, चंद्रयान की पूरी टीम को। लेकिन अब जरा एक बात समझाइए हमें मंथन जी कि पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है चांद का एक दिन, और प्रोपल्शन मॉड्यूल 4 से 5 साल तक काम कर सकते हैं। तो क्या अब इसके बाद कोई हर्डल नहीं है? हमने लैंडिंग कर ली है वहां पर, उसके बाद की प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया अब क्या होगी? अब चांद के सतह पे उस रिसर्च करेगा और उस पर ये देखने की कोशिश करेगा कि हमारे उस पर वाटर की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है, और अगर हम लोग वहाँ जाते हैं तो हम लोग वहाँ उसको एक बेस स्टेशन बना सकते हैं या नहीं बना सकते, क्योंकि चांद ही ऐसा एक अभी स्टॉप बन सकता है हमारा आगे ग्रह पे जाने के लिए, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो शनि हो, चाहे वो बृहस्पति हो। तो चांद ही हमारे पास एक ऐसा ही स्टॉप बन सकता है। तो उस स्टॉप को डिटरमाइन करने के लिए, उस स्टॉप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग उस चांद को भी हमारा जो रोवर है उसको और रिसर्च करेगा, और रिसर्च करके ये देखेगा कि क्या हम लोग वाटर एज ए फ्यूल इस्तेमाल करके हम लोग दूसरे ग्रह पे पहुंच पाते हैं या नहीं पाते। ठीक है, अब नारंग जी आप जरा हमें ये बताएं, क्योंकि 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई थी, लेकिन उसमें हम उतना कामयाब नहीं हो पाए। तो आप जरा बताइए कि चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 किस तरह से अलग था, और उसमें जो दिक्कत आई उससे हमने क्या सीखा, क्या बदलाव किया कि इतनी शानदार कामयाबी हमें हासिल हुई है? जी, सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये डिफरेंट थी कि इसके अंदर जो हमने डिज़ाइन चूज़ किया था फेलियर बेस्ड डिज़ाइन था, यानी कि एक बारी गलती करने के बाद इंजीनियर सीखता है, कोई भी पहली बारी में परफेक्ट नहीं होता। जैसे हमने अपनी गलती कर दी तब हमारे को सारी प्रॉब्लम समझ में आई कि हमने क्या किया था। जैसे इंजन जो था उसका बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से कुछ स्पीड का हो गया था, और
थोड़ा सा लैंडर जो था वो रोटेट करना शुरू हो गया था, और जो जगह थी जिसके अंदर उसने लैंड करना था वो बहुत कंस्ट्रेन करके दिया गया था उसे। तो एक तरफ वो घूमते घूमते अपने आप को सीधा होना चाहता था और एक तरफ वो उस एरिया के अंदर रखना चाहता था जिसके लिए सॉफ्टवेयर प्रिपेयर्ड नहीं था। तो पूरा जो लैंडर है शायद रोटेट हुआ है जिसकी वजह से वो क्रैश हुआ। ये हमने छोड़ के उसका जगह बढ़ा दी, किस एरिया में लैंड करना है। अब हमने एक जो पावरफुल इंजन था उसको हटा दिया क्योंकि वो ज़्यादा थ्रस्ट दे रहा था। इसके सॉफ्टवेयर में हमने तब्दीलियाँ की और उसके बाद हमने एक ये तब्दीली करी है कि इसमें हमारे को एक ऑर्बिटर की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज ऑर्बिटर जो कम्युनिकेशन रिले के लिए था वो पुराने चंद्रयान 2 का ही अभी भी यूज़ हो रहा है। सो इसके अंदर ये चेंजेस लाए गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यही चेंज है कि इसको जो हमने बनाया है वो फेलियर बेस, यानी कि ऑल पॉसिबिलिटीज़, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ जो गलत जा सकती थी वो हमने उनको एक एक करके दूर किया है। आप कह रहे हैं कि गलतियों से हमने सीखा और बहुत ही शानदार तैयारी की कि ताकि वो गलती दोबारा रिपीट ना हो, और लिहाजा नतीजा हम सबके सामने है कि हमने बहुत शानदार लैंडिंग वहाँ पर की है और इतिहास में भारत ने अपना नाम दर्ज कर लिया है, पहला देश बन गया है साउथ पोल पर पहुंचने वाला। अब एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मंथन जी, नहीं जॉन, आप जरा हमें ये बताइए कि 40 दिन में हमने ये सफ़र पूरा किया और 40 दिन के बाद हम सफलतापूर्वक लैंड कर पाए। ये प्रयास रूस की तरफ से भी हुआ, लेकिन रूस 6 दिन में पहुंचा। ये अलग बात है कि रूस को कामयाबी हासिल नहीं हुई। क्या वो टेक्नोलॉजी और ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है, और क्या ये 6 दिन में पहुंचने वाली जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत इफेक्टिव नहीं है और इसलिए हमने थोड़ा लंबा रूट चुना लेकिन सक्सेस रूट चुना? अच्छा, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। जब हमें पता है कि एक रास्ता है जो गारंटीड रास्ता है, वो बेहतर होगा या शॉर्टकट बेहतर होगा, वो उनका शॉर्टकट था। हमने वो रास्ता चुना जिससे हमें पता है कि गारंटीड इस रास्ते से हमें सक्सेस मिलेगा, और एग्जैक्टली वही हुआ जो हमने चुना। इस रास्ते में ये लंबा है लेकिन ये बहुत ही कम बजट में ये हो गया था। उनके पास ज्यादा बजट और कम टाइम, हमारे पास टाइम और बजट दोनों कम ही थे, लेकिन हमने कन्विंस कर दिया अपने ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट को कि हम यही रास्ता चुनेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने अपनी गलतियों से सीख लिया। चंद्रयान 2 में क्या क्या हो गया था, उसमें क्या क्या गड़बड़ हो गए थे, गलत गलतियां जितने भी हुए थे उससे सीख के हमने ये रास्ता चुन के एग्जैक्टली वही किया जो ये सही रास्ता था। सही हमेशा जीतेगा। तो यही चीजें जो अभी चंद्रयान 3 के साथ हुआ है। बिल्कुल, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और ये जो 40 दिन की यात्रा है ये हमने क्यों चुनी, ये आपने बहुत डिटेल में समझाया। लेकिन सुधीर जी, आप एक बार बताइए सर कि चंद्रयान मिशन पर भारत की नज़र तो है ही और थी ही, लेकिन नासा और यूरोपियन स्पेस कमीशन की भी नज़र है। तो ऐसी क्या चूक हो रही है वहाँ से कि वो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, या उनकी नज़र क्यों है, वो क्या चाहते हैं वहाँ से? ये तो एक जियोपॉलिटिकल इशू आप बोल सकते हैं, बट कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा, उनके टेक्निकल इश्यूज होंगे, उनके जो टेक्नोलॉजी है। एंड हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो कम्प्लीटली, हमने भी थोड़ा सा हेल्प लिया था रशिया से, बट मुझे लगता है कि उन लोगों को अब हमारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। एंड जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जो कि शुरू हुआ है, और हमें लगता है कि हमें उनको टेक्नोलॉजी देना पड़ेगा कि आप इस वे में जाइए, ये ट्रेजेक्टरी डिजाइन कीजिए और ये प्रोपल्शन मॉड्यूल होना चाहिए। सो इस वे में हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, एंड श्योरली वी विल हेल्प इट आउट। एंड उन्हें हमसे टाई अप करना चाहिए, आई थिंक, आफ्टर द सक्सेसफुल मिशन ऑफ चंद्रयान 3। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां नहीं कर पाई हैं वो भारत ने कर दिखाया है। ये हमारे लिए वाकई गर्व की बात है और गर्व का दिन है। और पीएम ने इसीलिए पीएम अभी ब्रिक समिट में भाग लेने पहुंचे, लेकिन वहां से वो जुड़े और उन्होंने संबोधन किया और उन्होंने बताया कि ये जयघोष है भारत का। और इसके अलावा उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि अब भारत का सूर्य मिशन भी होगा, सूर्य मिशन लॉन्च करेगा इसरो, ये बात भी पीएम ने कही है। तो इस पर सर आपका कमेंट नारंग साहब क्या होगा? क्या आपको लगता है कि उस दिशा में भी हम इतनी ही कामयाबी से आगे बढ़ पाएंगे? सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कैन यू प्लीज रिपीट? मैं कह रहा हूं सर, आज पीएम ने ये बात कही कि अब भारत सूर्य मिशन भी लॉन्च करेगा, इस पर आपका कमेंट क्या है?
आई एम सॉरी, कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? सूर्य मिशन सर। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। इसके बाद जो तैयारी, सूर्य मिशन, ओके हाँ। जी जी जी, सॉरी, हाँ। ओके। सो बेसिकली जी, आदित्य मिशन जो जा रहा है वो एक इसके बाद इमीडिएटली इसी मंथ में शेड्यूल्ड है कि आदित्य मिशन जो हमारा सन को स्टडी करने जा रहा है वो फर्स्ट टाइम सन के कोरोना को स्टडी करेगा, जहाँ पे एक ऐसी प्रॉब्लम है कि सन का कोरोना क्यों इतना गर्म हो जाता है। तो अभी तक वर्ल्ड में सोहो और बहुत सारे मिशंस हैं जो सन को स्टडी कर चुके हैं, लेकिन इंडिया की अपनी कोई ऑब्जर्वेटरी नहीं थी। तो इमीडिएटली इसके बाद जो अगले खुशी हम देखने वाले हैं कि इंडिया की अपनी एक सोलर स्टडी के लिए ऑब्जर्वेटरी, जो कि सन की सबसे बड़ी मिस्ट्री कि कोरोना जो सूरज का है वो कैसे इतना गर्म हो जाता है मिलियंस ऑफ डिग्रीज, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सूरज की सतह है वो खाली 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसके बाद जो इमीडिएटली कोरोना आता है सन का, वो इतना गर्म कैसे हो जाता है। तो सूर्य मिशन यानी कि आदित्य L1 मिशन इसके बाद इमीडिएटली लाइंड अप है, तो हम उसके लाइंड अप हैं और एक्साइटेड हैं। और ये इसरो ने नई शुरुआत की है, बिकॉज अब इंडिया, इसरो जो है डीप स्पेस मिशन कर रहा है। पहले आप जानते थे कि इंडिया एक सोसाइटल बेनिफिट्स की बात कर रहा था, अब इंडिया साइंटिफिक मिशन में आगे बढ़ रहा है। बहुत बड़ी कामयाबी निश्चित तौर पर हमारे हाथ लगी है। मंथन जी, ठीक है मंथन जी, अब एक सवाल मेरा आपसे ये है कि इसका मकसद ये है साउथ पोल पर पहुंचने का कि वहां पर रासायनिक खनिज जो संरचना है उसको हम समझें, है ना, चांद की सतह के प्लाज्मा में क्या बदलाव आ रहा है उसको हम, उसकी स्टडी हम कर पाएं, और चांद की सतह से संबंधित ज़्यादा जानकारी हम जुटा पाएं, भूकंपों की वजह को समझें। ये सारी चीज़ें समझने में, बूझने में कितना टाइम लगेगा सर? सर ये जो मिशन है ये तो सिर्फ 14 दिन का ही है। हमें इस 14 दिन में ही हमारा लैंडर जो है वो एक्टिव रहेगा। तो अभी जो हमारा जो रोवर है वो ऑलरेडी लैंडर और रोवर के जो कॉम्बिनेशंस है उसको 14 दिन में ही ये मिशन कंप्लीट करना होगा। पर इफ़ इन केस वहाँ इस पूरे मिशन में एक सर्किट ऐसा है कि अगर उसको हम एक्टिवेट कर देते हैं तो हमारा जो ऑलरेडी जो लैंडर और रोवर है उसको पावर मिलती रहेगी। इफ़ इन केस ये पावर मिलती रहती है तो हम लोग 14+14+14 को ऐड करते रहेंगे। तो इस मिशन से हमें बस 14 दिन के अंदर ही हमें सारा मिशन को कंप्लीट करके हमें जो आउटकम है वो निकालना होगा, जो हमारे नहीं तो फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो पावर ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही सन उससे ढक जाएगा, उस एरिया से ढक जाएगा जैसे ही, क्योंकि उसके अंदर सोलर पैनल इंस्टॉल्ड है, तो सोलर पैनल से सोलर की वजह से ही उसको पावर मिल रही है। जैसे ही वो पावर हटेगी तो वो ऑलरेडी वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा हमारे अर्थ स्टेशन से। तो ये 14 डेज का ही हमारे पास टाइम है जिस टाइम में हम इसको पूरा कवर कर सकते हैं। राइट, चलिए बहुत शुक्रिया मंथन गांधी जी आपका, जॉन आपका, सुधीर कुमार चतुर्वेदी जी आपका, और विक्रांत नारंग जी आपका, और आप सबको बहुत बहुत बधाई भी इस ऐतिहासिक दिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। तो आज इस इतिहास का साक्षी हम सब बने हैं। भारत ने चांद पर कदम रख दिया है, इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है। बहुत शुक्रिया।